व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम है ताहिद हुसैन। ताहिद हुसैन फॉरेन एडवाइजर है बांग्लादेश के। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली अब जितने भी एमओयू साइन हुए हैं हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? जहां जहां बांग्लादेश को यह लगता है कि उनका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वहां वहां उन एमओयूज को कैंसिल किया जाएगा। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে এই খবরটা শোনার পরে আমি মনে করি যদি আপনি বাংলাদেশী হন অবশ্যই আপনার ভালো লাগার বিষয়। তার কারণ বাংলাদেশ এতদিন ধরে যাদের হাতে শোষণ হয়েছিল, বাংলাদেশ এতদিন ধরে যাদের কাছে নির্যাতিত হয়েছিল, আজকে ওই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে শিখেছে। আজকে ওই বাংলাদেশ চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শিখেছে। আজকে ওই বাংলাদেশ একের পর এক চমক দেখাচ্ছে। আজকে ওই বাংলাদেশ তাদের করা মিথ্যা, তাদের করা যত অপতৎপরতা সবকিছু রুখে দিচ্ছে। আজকে ওই বাংলাদেশ ভারতের আগ্রাসন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি কেন কথাগুলো বলছি? বাংলাদেশকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার যে ষড়যন্ত্র করেছিল ভারত, বাংলাদেশের বর্তমান যে সরকার তারা তাদের এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। আপনারা শুনলে অবাক হবেন বা আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে বাংলাদেশের বর্তমান যে সরকার রয়েছে হয়তো তারা অল্প কয়েকদিন ক্ষমতায় থাকবে, কিন্তু বর্তমানে ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় আতঙ্কের বিষয়। তার কারণ তারা যে স্বপ্ন দেখেছিল বাংলাদেশকে নিয়ে, বাংলাদেশকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলবে, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে রেল লাইন নিয়ে যাবে, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে যাবে, বাংলাদেশের বন্দরগুলোকে অবৈধভাবে ব্যবহার করবে এবং যখন যেখানে যা ইচ্ছে সেই জিনিসগুলো তারা ঘটাবে। কিন্তু বর্তমান যে পরিস্থিতি রয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত পুরোপুরি উদ্বিগ্ন এবং তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে তারা কি করবে। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, গত কয়েকদিন ধরে সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী যেই দাপট দেখিয়েছে এবং তাদের যে সাহসী পদক্ষেপ দেখিয়েছে, এখানে আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়েছে এবং খুবই খুশি করে দিয়েছে। আজকে আরেকটি নিউজ এমন প্রকাশ হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই পদক্ষেপটি অবশ্যই আপনাকে খুশি করবে। কেন কথাগুলো বলছি? শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের মিডিয়া বর্তমানে এই বিষয় নিয়ে চর্চা করছে। তারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে কেন বাংলাদেশ এই মুহূর্তে এরকম পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে। আপনারা জানলে অবাক হবেন, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে অবৈধ ট্রানজিট সুবিধা ছিল এবং ভারতের যে অবৈধ রেল সুবিধা ছিল, ভারতের যে অবৈধ দখলদারদের সুবিধাগুলো দিয়েছিল হাসিনা সরকার, সেগুলোকে ক্যান্সেল করতে যাচ্ছে এবং সেই ডিলগুলো পুরোপুরি বাতিল হবে। আমি আমার মুখের কথা বলছি না, আমি ইন্ডিয়ান মিডিয়ার কিছু রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখাইতে চাই যেখানে তারা বলার চেষ্টা করছে কেন এখন বাংলাদেশ এই জিনিসগুলো করছে এবং তারা এক কথায় ব্যবলা হয়ে গিয়েছে যে তারা কি করার চেষ্টা করছে। চলুন গুরুত্বপূর্ণ সেই নিউজটি একটু দেখে আসে। তারা একটা কথা বলতে চাই, আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন আগে ভিডিওটি দেখে আসি। कि खालिदा जिया जिन्होंने अभी कमान संभाली है, उन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जितनी भी अभी ट्रीटीज हुई थी, समझौते हुए थे, एमओयूज हुए थे, उनको अब कैंसिल किया जा सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जून 2024 के अंदर रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट हुए थे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। अब वो जो एग्रीमेंट है अब वो कैंसिल होने की कगार पर है। ये वो एग्रीमेंट है जो कि 22 जून को हुए थे। टोटल 10 एमओयू साइन किए गए थे और उन एमओयू के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया या फिर इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं वो था रेल ट्रांजिट एग्रीमेंट। रेल ट्रांजिट एग्रीमेंट के अंतर्गत जितनी भी ट्रेन थी वो बांग्लादेश के अंदर जा सकती हैं और बांग्लादेश से वो इंडिया में भी आ सकती हैं। बोला तो ऐसा पहले भी था, लेकिन और भी कई फैसिलिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है ताहिद हुसैन। ताहिद हुसैन फॉरेन एडवाइजर है बांग्लादेश के। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली अब जितने भी एमओयू साइन हुए हैं हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? जहां जहां बांग्लादेश को यह लगता है कि उनका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वहां वहां उन एमओयूज को कैंसिल किया जाएगा। और बात करें कनेक्टिविटी की, तो चाहे रेल ट्रांजिट हो उसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ऐसी कई बातें जो हैं वो एडवाइजर के द्वारा कही गई है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पर। आप लोग देखेंगे कि ये है अगरतला, अगरतला जो कि त्रिपुरा है, फिर ये ढाका है, दोनों के बीच में एक बस सर्विस चलती है। टोटल जो डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर की। ये जो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको लगभग 2 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं
रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया था। इससे इंडियन स्टूडेंट्स जा सकते हैं बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी भारत के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर डेली बेसिस पर भी अगर एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़े तो भी ये बस सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बस सर्विस है हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ये बंद हो जाए। दूसरा हम लोग बात करें कि शेख हसीना ने क्या कहा था। शेख हसीना ने कहा था कि हम बांग्लादेश को और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन खालिदा जिया ये कह रही है कि भारत के साथ में ये जो संबंध किए गए हैं, एमओयू साइन किए गए हैं, ये बांग्लादेश के अंदर बारूद सप्लाई करने के बराबर है, क्योंकि भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कनेक्टिविटी के नाम पर कई हथियार जो है वहां पर पहुंचाता है। खालिदा जिया मतलब अपोजिशन जो बीएनपी पार्टी है उनका ये कहना है। लेकिन शेख हसीना ने कहा है कि भारत के साथ में अगर इस तरीके से हम लोग संबंध रखेंगे तो फायदा हमारा ही है, खासतौर पर मेडिकल फैसिलिटीज, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें या फिर ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात करें। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आप लोगों को, यह है रेल सर्विसेज। बांग्लादेश के चारों तरफ से हम लोग जो है वो रेल कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करते हैं बांग्लादेश को। जैसे मैं आपको बात करूं, कोलकाता से अगर किसी भी व्यक्ति को ढाका जाना है तो वो रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से जा सकता है। लेकिन अभी तक क्या होता था कि जैसे ही हमारी जो ट्रेन है वो बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर जाना यानी कि एंटर करती ही थी तो ट्रेन का इंजन जो है वो चेंज होता था। बांग्लादेश अपना ट्रेन का इंजन वहां पर पुट करता था और फिर वो ट्रेन जो है वो बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती थी। ऐसा हर जगह होता था। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे यहां पर क्या बने हुए हैं, रेल कनेक्टिविटी के लिए यहां पर कई सारे कनेक्शन जो है वो बने हुए हैं। मतलब चारों तरफ से हम लोग यहां पर बांग्लादेश के अंदर पहुंच सकते हैं। पहले ये चलता था कि इंजन जो है वो चेंज हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ये रेल सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं, बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं जब से शेख हसीना ने भारत के अंदर शरण जो है वो ली है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश जो है वो क्या कर सकता है। 10,000 MCQ की हम लोग क्लास इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले भारत के मैप को देखिए आप। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, सबसे पहले चाइना कट्टर दुश्मन है। 1962 की वॉर के अंदर हम लोग भिड़ चुके हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के तो ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो सकता है ना, एनिमी कंट्री है। नेपाल धीरे धीरे जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। मतलब हम लोग इसको भी जो है वो एक ट्रस्ट नेबर नहीं रख सकते हैं। भूटान की अगर अब तक हम लोग बात करें तो इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये भारत के साथ में अभी भी है। बांग्लादेश की हालात आप लोग के सामने है कि बांग्लादेश किस तरीके से चाइना से इन्फ्लुएंस हो रहा है, पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस हो रहा है। श्रीलंका की हालात देख लीजिए, किस तरीके से वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ा था, उसके बाद में काफी रिलेशन जो है वो बिगड़े थे। मालदीव जो है उसके साथ में ऑलरेडी रिलेशंस खराब हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है तो वो तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो हम लोग इसकी भी बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास में एक दोस्त है और वो केवल भूटान है। अब इन सब के पीछे एक किरदार है और वो है यूएसए। यूएसए चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे, यूएसए चाहता है कि वो पाकिस्तान को हेल्प करे। समझ रहे हैं आप लोग? वो अगर पाकिस्तान को हेल्प करता है तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है, करेगा नहीं वो, है ना। लेकिन तो यूएसए जो है वो किसको हेल्प कर रहा है? पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। ठीक है, यूएसए और अफगानिस्तान की बनती नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान और भारत की थोड़ी थोड़ी जो है वो बनती है। मालदीव जो है, मालदीव के नजदीक ही यूएसए ने अपना नेवल बेस जो है वो बना रखा है। श्रीलंका, खासतौर पर बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश का एक आइलैंड था जिसको यूएसए लेना चाहता था, बांग्लादेश ने मना किया। तो आप बांग्लादेश की हालत देख लीजिए कि कैसे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन खराब हो गए हैं। मतलब ये सारा जो किया धरा है वो सब यूएसए का है। यूएसए इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है इनके बीच में रिलेशंस को खराब करना चाहता है। उसका रिजल्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं।